السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ترسول کھنڈ کی داسی ایپیسوڈ نمبر 09۔ سب کی کہانی ایک جیسی تھی، وہ سب اچھے گرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ کچھ نادانی میں راستوں سے بھٹک گئی تھی۔ ایک ہندو لڑکی جس کا نام وسنتی تھا، بمبئی سے ہی لائی گئی تھی۔ بمبئی کا نام سن کر میں چونک پڑا۔ تمہیں بمبئی سے کب لایا گیا؟ تقریباً 1.5 ماہ ہوا۔ بمبئی سے مجھے دبئی لے جایا گیا اور پھر وہاں سے یہاں لایا گیا۔ کون لایا تھا؟ کیا تم اس کا نام بتا سکتی ہو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس بردہ فروش کا نام بن فرقان تھا۔ بن فرقان، اور میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ عارف بھی اچھل پڑا۔ کیا تمہارے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں؟ ہاں، 3 لڑکیاں اور لائی گئی تھیں۔ کیا ان میں شاہدہ نام کی بھی کوئی لڑکی تھی؟ ہم دونوں کا چہرہ دیکھو، شاہدہ ہماری شکل سے ملتی جلتی تھی۔ ہاں، شاہدہ ان میں موجود تھی اور اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی۔ وہ تارا گڑھ۔ ابھی اس نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ عارف لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ تارا گڑھ کی رہنے والی تھی نا؟ ہاں، ایک ہندو اسے بہکا کر بھگا لایا تھا۔ وہ مسلمان تھی۔ ہندو سے اس کا حمل ہو گیا تھا۔ بمبئی آ کر اس نے حملے استقاط کرایا اور پھر کچھ دن رکھنے کے بعد بن فرقان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ شاہدہ کہاں ہے؟ وسنتی، خدا کے لیے اس کا پتہ بتا دو۔ ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ عارف نے وسنتی کے دونوں شانوں کو پکڑ کر دیوانہ وار جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وسنتی اس کے اس انداز پر سہم گئی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اور مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ بن فرقان نے اسے نیلام کر دیا تھا۔ کب نیلام کیا تھا؟ کس کے ہاتھ نیلام کیا تھا؟ کون تھا وہ جس نے میری بہن کو خریدا تھا؟ عارف درد میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، وہ تمہاری بہن تھی؟ ہاں وسنتی، ہم اس بد نصیب کو تلاش کرتے در در مارے پھر رہے ہیں، میں نے کہا۔ میں ابھی اسی کے ساتھ تھی۔ تمام لڑکیاں نیلام ہو گئیں۔ شاہدہ کو بھی ایک شیخ نے خرید لیا اور میں اس شیخ کے بارے میں نہیں جانتی، صرف میں رہ گئی تھی۔ اس لیے بن فرقان نے مجھے اس دوسرے بردہ فروش کے ہاتھوں فروخت کیا اور یہاں سے چلا گیا۔ بن فرقان کہاں گیا؟ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ میں نے ایک رات بن فرقان کے آدمیوں کی گفتگو سنی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس بار وہ کابل جا رہے ہیں۔ میں کسی بڑے شیخ نے کچھ کابلی لڑکیوں کی فرمائش کی تھی، بلکہ اسی وجہ سے بن فرقان نے مجھے دوسرے بردہ فروش کو دے دیا تاکہ وہ اس دوسرے کام کے لیے روانہ ہو سکیں۔ کابل؟ عارف نے میری طرف دیکھا۔ ہم کابل چلیں گے عارف، خواہ کچھ بھی ہو، ہم فوری طور پر کابل چلیں گے، میں نے کہا، اور پھر ان لڑکیوں سے بولا کہ تم لوگ بے فکری سے یہاں رہو، ہم تمہیں کسی ایسی جگہ بھیج دیں گے جہاں سے تم اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو سکو۔ لڑکیوں کو دلاسا دینے کے بعد ہم اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ ہمارے ذہنوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس وسیع و عریض علاقے میں ہم اس شیخ کو نہیں تلاش کر سکتے تھے، لیکن اگر بن فرقان مل جاتا تو شاید شاہدہ کا کچھ پتہ چل جاتا۔ عارف میرے خیال پر کچھ الجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کابل تک جانے میں کافی وقت صرف ہو سکتا ہے اور اس دوران ممکن ہے بن فرقان اپنا کام کر کے وہاں سے چل پڑے، لیکن میرے ذہن میں کابل جانے کی دھن سمائی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں تھوڑی دیر کے بعد عارف کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہماری کشتی چھوٹی سی تھی اور 6 آدمی اس میں سوار ہو کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے دوسری کشتی کا کوئی بندوبست کرنا تھا۔ ہم کچھ لوگوں سے ملے۔ یہاں ایسا کام ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ کرائے کے اسٹیمر ان لوگوں کو یہاں سے ان کی مطلوبہ جگہوں پر چھوڑ دیتے تھے جن کے پاس اپنی کشتیوں کا بندوبست نہ ہوتا۔ ایک دلال نے کچھ رقم دے کر عوض ہمیں ایک ایسی کمپنی کے اڈے پر پہنچا دیا جو یہ کام کرتی تھی۔ کمپنی کے مینیجر نے بتایا کہ فوری طور پر اس کا ایک اسٹیمر ایک بڑے شہر جا رہا ہے، لیکن سواریاں پوری ہونے کا انتظار ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اگر پورے اسٹیمر کو ہم اپنے استعمال میں رکھیں تو کیا خرچ ہوگا؟ وہ رقم ایسی نہیں تھی کہ ہم نہ دے سکتے، چنانچہ ہم نے فوراً
एक स्टीमर अंगेज कर लिया और दूसरे दिन एक छोटा सा खूबसूरत स्टीमर हम लोगों को लेकर चल पड़ा। लड़कियों के चेहरों से खुशी फूटी फोड़ रही थी, लेकिन हमारे दिल बदस्तूर रंजो गम में डूबे हुए थे। काश शाहदा भी यहाँ मिल जाती। स्टीमर सफ़र करता रहा। स्टीमर का कप्तान एक खूबसूरत नौजवान अरब था। रास्ते में हम उससे काफ़ी बेतकल्लफ हो गए। अरब ने हमसे पूछा कि हमारी मंजिल कौन सी है। इन लड़कियों को हिंदुस्तान भेजना है और हम अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया। क्या आपके पास इस सफ़र के लिए पासपोर्ट वगैरह का बंदोबस्त है? उसने पूछा। नहीं, वहाँ जाकर बंदोबस्त करेंगे। क्यों? तुमने ये सवाल क्यों किया? कप्तान हंसने लगा और फिर बोला कि ऐसे ही मालूम कर रहा था। ऐसी कुछ कंपनियां मेरे इल्म में हैं जो ये काम करती हैं। मैंने सोचा कि शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। यानी हमें पासपोर्ट वगैरह आसानी से मिल सकते हैं। दौलत चाहिए जनाब, दुनिया का कौन सा काम रुकता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम हमारा ये काम करा दो तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन काम ऐसा हो कि किसी तरह फंसने का अमकान ना रहे, आरफ ने कहा और कप्तान फिर हंसने लगा। दौलत से ही आदमी फंसता भी है और दौलत ही से निकल जाता है, और जो काम तुम्हें करा कर दूंगा उसमें ज़रा बराबर फंसने के अमकानात नहीं होंगे। लेकिन मैं उस काम के $2000 लूँगा। किसी भी करेंसी में हो, रकम $2000 होगी। मुझे मंजूर है, आरफ जल्दी से बोला। तब ठीक है, $1000 मेरे और 1000 मेरे बाकी साथियों के। पासपोर्ट की जो रकम होगी वो अलग से दुनिया देना होगी, कप्तान ने कहा और आरफ ने मंजूर कर लिया। मेरा दिल डूब रहा था कि आरफ ही तो मेरा सहारा है। अगर रकम हासिल करने के चक्कर में वो फंस गया तो फिर मेरा क्या होगा? ये दुनिया मेरे लिए फिर तारीख हो जाएगी। मायूसियों के अंधेरों में भटकने के बाद आरफ के साथ ने उम्मीद की कुछ किरणें जगमगा दी थी, और अगर वो भी गुम हो गईं। क्या सोच रहे हो भाईजान? आरफ ने मेरे चेहरे पर छाई हुई फिक्र की घटाओं को देखते हुए कहा। इतनी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करोगे आरफ? ना जाने क्या खर्च हो। क्या आप मेरे बैंकों से मुतमिन नहीं हैं भाईजान? आरफ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं आरफ, मैं मुतमिन नहीं हूँ। खुदा ना ख्वास्ता कभी फंस गए तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे 100 मारे तो 100 ज़िंदा हों। बड़े बोल से तौबा करता हूँ भाईजान, कम अज़ कम इस सिलसिले में तो नहीं फंस सकता। मेरा उस्ताद भी मेरी सफाई का लोहा मानता था और मेरे हाथ से निकल जाने के बाद कफ़े अफसोस मलता रह गया था। फिर भी आरफ, उसके अलावा हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है भाईजान, आरफ ने होंठ सिकोड़ कर कहा। आरफ दुरुस्त कह रहा था, और उसके अलावा और ज़रिया भी क्या था? मैं अकेला होता तो ये सब कुछ कभी नहीं कर सकता था। चुनाचा मैं खामोश हो गया। 2.5 दिन के सफ़र के बाद हम एक सुनसान साहल पर पहुंच गए। उन लोगों ने जितना बड़ा जाल फैलाया था उसका जवाब नहीं था। साहल से एक वैन हमें लेकर शहर आ गई और उस अजीमो शान शहर के एक खूबसूरत होटल में मुकीम हो गए। कप्तान ने तमाम जिम्मेदारी अपने साथ ले ली थी। हम लोग सिर्फ होटल तक महदूद रहे। अलबत्ता आरफ सिर्फ एक दिन होटल से बाहर गया, और रात को 11 बजे जब वो होटल वापस आया तो उसके हाथ में एक चर्मी बैग था। उसने बैग मेरे सामने खोल दिया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग नोटों से भरा हुआ था। क्या तुमने किसी बैंक में डाका डाला है आरफ? नहीं भाईजान, हालात ऐसे हैं कि मैं कोई खतरे का काम नहीं कर सकता। आज एक दूसरे उस्ताद का नाम लेकर काम शुरू किया था। एक बड़े का पर्स उड़ाया और उसमें $4000 के नोट थे, और उन्हें लेकर एक जुआ खाने में पहुंच गया। बड़ा आला पैमाने पर जुआ होता है भाईजान, और मज़े की बात यह है कि लोग बड़ी ईमानदारी से खेलते हैं। ऐसे सीधे लोग थे बेचारे कि उन्होंने मेरे बेतहाशा जीतने पर भी ये ना सोचा कि मैं कार्ड लगा रहा हूँ। जुआ खाने के बैंक मैनेजर ने मुझे गोलों की एवज़ रकम देते हुए ज़बरदस्त मुबारकबाद दी थी। वैसे इस शहर में ये रकम जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं। गोया तुम शार्पिंग भी लेते हो, मैंने उसे घूरते हुए कहा, और आरफ शरारत अमीद अंदाज में मुस्कुराने लगा। दूसरे दिन 8 बजे कप्तान मेरे पास आया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सब लोग मेरे साथ चलो, तस्वीरें लेना है। बाकी बातचीत हो गई है। $5000 खर्च होंगे, 2000 मेरे, गोया कुल $7000। काम ऐसा है कि कोई खटका ही नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा ही काम होना चाहिए, मेरी बजाय आरफ ने कहा, और हम सब उसके साथ चल पड़े। चौथे दिन कप्तान ने हमारे पासपोर्ट हमारे हवाले कर दिए और रकम लेकर चलता बना।
फिर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद रखना, बहर काम छुट्टियों में करा दूंगा, उसने चलते चलते कहा था। पासपोर्ट हमें मिल गए थे। हमारे लिए तो एक एक पल भारी था। हमने हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च करके काम कराया। लड़कियों के एक जहाज़ से उनके वतन के टिकट बनवाए। सवार होते वक्त उन्होंने खलूसे दिल से हमें दुआएं दी और कहा था कि हमारी मुरादें पूरी हों। उन्हें रवाना करने के बाद एक तैयारे से हम भी चल पड़े। तैयारा बराह रास्त काबुल नहीं जाता था, एक दूसरे मुल्क से हमें तैयारा बदलना था। बहरहाल पासपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त थे और हमें इस सिलसिले में कोई दुश्वारी ना हुई और 5वें दिन हम काबुल पहुंच गए। यहाँ हम बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन हमारे पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज मौजूद था और दौलत की कुव्वत तमाम अजनबियत दूर कर देती है। एक आला दर्जे के होटल में हमने क़याम किया। रात हो चुकी थी, इसलिए बिन फुरकान की तलाश का काम हमने दूसरे दिन पर मुलतवी कर दिया। वैसे रात गए तक हम उसे तलाश करने का प्रोग्राम बनाते रहे थे। इतने बड़े शहर में किसी ऐसे आदमी को तलाश कर लेना मामूली काम नहीं था। और फिर बिन फुरकान एक जुराम पेशा शख्स था। अगर कोई आम आदमी होता तो उसके असूल के लिए कोई दुश्वारी पेश ना आती, लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आरफ एक ज़हीन तरीन इंसान था। अपनी धानत से काम लेते हुए उसने यहाँ भी बिल्कुल नए अंदाज से काम किया और उसने यहाँ के तमाम रोज़नामों में एक इश्तहार निकलवाया। इश्तहार का मजमून ये था कि गुमशुदा भाई की तलाश। बिन फुरकान, जिसके बारे में इतला मिली है कि वो यहाँ मौजूद है, जहाँ कहीं भी होटल तफल्लुक के कमरा नंबर 48 में पहुँच जाए और उसके 2 भाई उसकी तलाश में यहाँ आए हैं। उस इश्तहार के अलावा आरफ ने ऐसी जगहों पर उसकी तलाश शुरू कर दी जो जुराइम पेशा अफराद का गिरोह थी, और ऐसी जगहों पर तो बिन फुरकान ना मिला, लेकिन इश्तहार वाली तरकीब कामयाब रही। मुसलसल 3 रोज़ से इश्तहार छप रहा था। तीसरे रोज़ रात को किसी ने हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। एक आदमी ओवरकोट पहने कॉलर चढ़ाए खड़ा था। मिस्टर आरफ यहाँ रहते हैं? हाँ, अंदर आ जाइए, मैंने अखलाक से कहा, हालांकि मेरा दिल धाड़ धाड़ कर रहा था। मैं आपके गुमशुदा भाई के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। हम समझ गए, अंदर तशरीफ़ ले आइए, मैंने कहा और वो अंदर आ गया। उसका हाथ ओवरकोट की जेब में था और यकीनन उसमें पिस्तौल मौजूद होगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो भी संभल कर बैठ गया। आने वाले का चेहरा अभी तक फ्लैट के नीचे पोशीदा था। क्या उम्र थी आपके भाई की? उसने सरसराते हुए लहजे में पूछा। हम उम्र का तयन नहीं कर सकते, वैसे अगर तुम बिन फुरकान हो तो हमें तुम्हारी तलाश थी, आरफ ने संजीदगी से कहा। क्यों? उसने पुरअसरार अंदाज में पूछा। हम उस जजीरे से आ रहे हैं जहां तुम माल फरोख्त करते हो। कौन सा माल? लड़कियां। बहरहाल इस जिक्र को छोड़ो, हमें एक लड़की की तलाश है। अगर तुम सिर्फ उसका पता बता दो तो हम तुम्हें उतनी ही कीमत मज़ीद देंगे जितनी मैं तुमसे उसे फ़रोख्त किया है। क्या बकवास कर रहे हो? कैसी लड़कियां? कौन सा जजीरा? शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं तुमसे तुम्हारे इश्तहार के बारे में गुफ्तगू करने आया था और तुमने रवैये की गुफ्तगू शुरू कर दी है, आने वाले ने झल्लाते हुए कहा। तब तुम हमारे मतलूबा आदमी नहीं हो सकते। जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम वही हो तो सिर्फ बन रहे हो तो यकीन इस तरह कर लो। आरफ ने चर्मी बैग उठा लिया और जिसमें अब भी काफ़ी नोट मौजूद थे, जिसे आरफ नहायत सफाई से निकाल लाया था, और उसने बैग खोलकर उसने सामने कर दिया और बोला, इसमें से कम अज़ कम आधी गुठियाँ तुम्हारी हो सकती हैं। उसने फ्लैट ऊंचा करके चारों तरफ देखा और फिर धीमे लहजे में बोला, तुम में से एक को मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? बिन फुरकान के पास। मैं उसका नुमाइंदा हूँ। वो कहाँ है? आरफ ने जल्दी से पूछा। एक मकामी होटल में मुकीम है। मैं खुद तुम्हें उसके पास ले चलूँगा। मैं उनके साथ जा रहा हूँ भाईजान, आप मेरा इंतज़ार करें। आरफ खड़ा होता हुआ बोला। नहीं आरफ, हम दोनों ही चलेंगे। अगर बिन फुरकान से बात हो जाती है तो उसी वक्त मामला तय कर लेंगे, मैंने कहा, और आरफ हरकचाते हुए अंदाज में मेरी शक्ल देखने लगा। मैंने उस शख्स की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, और उस रकम की फ़िक्र मत करो, दौलत से हमें दिलचस्पी नहीं है, हम उसे साथ ले चलेंगे। अव्वल तो हम मोम के बने हुए नहीं हैं, और दोइम हम खुद ये रकम बिन फुरकान को दे रहे हैं, चुनाचा इस फिक्र करना बेसूद है। ठीक है, आरफ ने एक गहरी सांस लेकर कहा, और हम दोनों ने लिबास तब्दील कर लिया। नोटों की गुड़ियाँ निकाल कर जेब में ठोंसी और तैयार होकर नवार्द के साथ चल पड़े।
नीचे उसकी कार मौजूद थी। हम दोनों पिछली नशस्त पर बैठ गए और उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। कार आगे बढ़ गई। मैं खुद भी इस सिलसिले में अपनी जल्दबाजी को महसूस कर रहा था। मुमकिन है कि वह शख्स रकम के लालच में हमें कहीं ले जा रहा हो और हमारे पास पिस्तौल वगैरह भी नहीं था। ऐसी हालत में हम आसानी चोट खा सकते थे, लेकिन अब इस सिलसिले में सोचना बेकार था। मैं तो खुद हालात के धारे पर छोड़ चुका था, लेकिन आरफ का मसला था, ना जाने उसके ख्यालात क्या हों। कार दौड़ती रही और उसी रफ्तार से मेरा जहन दौड़ता रहा, यहाँ तक कि कार एक खूबसूरत होटल के लॉन में दाखिल हो गई। पार्किंग में कार खड़ी करके उसने हमें नीचे उतरने के लिए कहा और फिर हमारे आगे आगे चलता हुआ होटल के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ लिफ्ट लगी हुई थी। लिफ्ट ने हमें तीसरी मंजिल पर छोड़ दिया। एक राहदारी में चंद कदम चलकर हम तीनों एक कमरे के सामने रुक गए। उस शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने का अंदाज मखसूस था। चंद सायद के बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला अरबी लिबास में मलबूस था और उसने हम दोनों को गौर से देखा और फिर दरवाजे से हट गया। हम कमरे में पहुंच गए। आला दर्जे के फर्नीचर से आरास्ता कमरे के ऐन दरमियान पड़े हुए सोफे पर एक शख्स बैठा हुआ था। एक भारी भरकम अरब, जिसकी जिसामत किसी देव से कम नहीं थी। स्याह चेहरे पर स्याह दाढ़ी और पड़ी हुई मूंछें बेहद खतरनाक लग रही थी। यही बिन फुरकान था। हमें साथ लाने वाले ने अरबी में काफ़ी देर तक उससे गुफ्तगू की और इस दौरान मैं और आरफ खड़े ही रहे थे। आरफ की आंखों के बदलते हुए रंग को मैंने देखा और आंखों ही आंखों में उसे ज़ब्त करने का मशवरा दिया। ज़ाहिर है कि बिन फुरकान ने शहाद को फ़रोख्त किया था और वही बहुत सी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करने का ज़िम्मेदार था। उसे देखकर गुस्सा आना लाजमी बात थी, लेकिन उस वक़्त हालात ऐसे थे कि खुद पर काबू रखना बेहद ज़रूरी था। बिन फुरकान से हमें शाहदा का पता मालूम करना था। फिर बिन फुरकान हमारी तरफ रुख करके अंग्रेज़ी में बोला, बैठ जाओ। हम दोनों खामोशी से बैठ गए। मैं अंग्रेज़ी में बोल सकता हूँ, अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करो। तुम क्या चाहते हो? हम तुमसे एक लड़की के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। पहले ये बताओ कि वो लड़की तुम्हारी अजीज़ा थी? हाँ, बहुत अजीज़, मैंने हसरत से कहा। ठीक है, वो कौन थी, कहाँ थी और तुम्हें कैसे शुबा हुआ कि वो कभी मेरे पास थी? पिछली बार तुम बम्बई गए थे और तुमने वहाँ एक हिंदू जिसका नाम वीप चंद था उसे ख़रीदा था। मुसलमान लड़की थी और उसका नाम शाहदा था। ठीक है, आगे कहो। वही हमारी मतलूबा लड़की है और वही हमारी बहन है और हम उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तुम्हारी तलाश में हम दुबई गए थे, जहाँ से एक जजीरे पर जहाँ लड़कियाँ फ़रोख्त होती हैं। वहाँ से हमें पता चला कि तुम काबल आए हो, चुनाचा हम वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। खूब, बहुत खूब। और बम्बई में तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? वीप चंद ने। ओह, ठीक है। और वहाँ तो दोस्त, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने उसे अगवा तो नहीं किया था। किसी ने उसे मेरे हाथ फ़रोख्त किया। क्या मैंने उसे थोड़ा सा मुनाफे से बेच दिया? बहरहाल, अब तुम क्या चाहते हो? सिर्फ ये मालूम करना है कि उसे तुमने किसके हाथों फ़रोख्त किया था। सुनो बिन फुरकान, हमें तुम्हें सिर्फ उसका पता बताने की उतनी कीमत दे सकते हैं जितने में तुमने उसे फ़रोख्त किया होगा। आरफ ने कहा और वह अब तक इंतहाई चालाकी से गुफ्तगू करता रहा था और अपनी गुफ्तगू से उसने बिन फुरकान को किसी किस्म का शुबा नहीं होने दिया। खूब, किसी चीज़ की कीमत अदा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ तो दोस्त, तुम उसका पता बताने की क्या कीमत दे सकते हो? क्या मांगते हो? $5000। बिन फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा। मंजूर, आरफ जल्दी से बोल पड़ा। एक सौदा और करो और दूसरे सौदे के साथ ही ये सौदा भी तय हो सकता है, बिन फुरकान ने कहा। उसने ख्वार आदमी के चेहरे से ऐसी कराहत हो रही थी कि दिल चाह रहा था कि उसकी बोटियां चबा डाली जाएं, लेकिन अफसोस हम दोनों ही ऐसा करने से मजबूर थे। हम उसकी मनहूस शक्ल सवालिया नज़रों से देख रहे थे और वो चंद मिनट सोचता रहा, फिर बोला। लड़की एक शेख ने खरीदी थी, बेपनाह दौलतमंद शेख ने, और मेरा मुस्तकिल गाहक है और इसलिए वो मुझे याद है। वरना जाने कितने सौदे करता हूँ और कितने मुल्क के लोगों से वास्ता पड़ता है, सबको भूल जाता हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था कि शेख मेरा पुराना वाक़िफ़ है और मैं उसकी आदत भी जानता हूँ। जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उसे हर कीमत पर ख़रीद लेता है और फिर दुनिया की कोई ताकत वो चीज़ उससे हासिल नहीं कर सकती। वो लड़की, मेरा मतलब है कि तुम्हारी बहन से है और उसने बड़े शौक़ से ख़रीदी थी। मुझे यकीन है कि वो आसानी से वापस करने पर तैयार ना होगा और उसे मैं सिर्फ
मैं हासिल कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही उसे पट्टी पढ़ाऊँगा कि वो उस लड़की को वापस देने पर तैयार हो जाए। उसने वापस ना किया तो जिस तरह दूसरी लड़कियां आसानी से हमारे कब्ज़े में आ जाती हैं, उसी तरह वो लड़की भी दोबारा मेरे कब्ज़े में आ सकती है। क्या ख्याल है? ठीक है, वो लड़की हमें दिला दो। $15,000 होंगे उसके, क्या ख्याल है? और कुल हुए $20,000। मेरा ख्याल है कि एक बहन की ये कीमत ज़्यादा नहीं है। हमें मंजूर है बिन फुरकान, लेकिन क्या तुम वादे की पाबंदी करोगे? आरफ ने पूछा। मर्द का वादा एक बिन फुरकान को औरत के कहने वाले ने आज तक जन्म नहीं लिया। हमें क्या करना होगा? सिर्फ 3 दिन इंतज़ार। मेरा काम ख़त्म हो चुका है और तीसरे दिन हम खुशकी के रास्ते यहाँ से ईरान निकल चलेंगे और फिर वहाँ से वापस उस जगह जहाँ तुम्हारी बहन मौजूद है। पहले मैं तुम्हारी बहन को हासिल करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा और उसके बाद अपना दूसरा काम करूंगा। ठीक है शेख, ये गुड्डियाँ संभालो और गिनो कितनी हैं। आरफ ने कहा और जेब से नोटों की गुड्डियाँ निकालते हुए मुझे भी इशारा किया और मैंने भी नोट निकाल कर बिन फुरकान के सामने ढेर कर दिए। $13,000 थे और बाकी रहे 7,000, और उनके लिए आरफ ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं था। $7,000 के अलावा 5,000 हमारी तरफ से बिन फुरकान काम होते ही ये रकम अदा कर दी जाएगी। सौदा मंजूर। बिन फुरकान ने नोट समेटते हुए कहा और फिर गुड्डियाँ एक तरफ रख कर हमारी तरफ हाथ बढ़ाया। बिन फुरकान ऐसे लोगों के लिए दिलो जान से काम करता है जो उस पर एतबार करते हैं। आज से तुम उसके मेहमान हो। तुम्हारा सामान यहाँ मंगवा लिया जाएगा। शायद ये सुनकर तुम्हें खुशी हो कि ये होटल तुम्हारे खादम ही का है और दुनिया के बेशतर मुल्कों में मेरे ऐसे ही होटल मौजूद हैं। ये मेरे पेशे में मेरी बड़ी मदद देते हैं। मैं खामोश रहा, लेकिन आरफ बिन फुरकान में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। वो काफ़ी देर तक बिन फुरकान से गुफ्तगू करता रहा। बहरहाल उस ख़तरनाक आदमी से आरफ की खासी दोस्ती हो गई। बिन फुरकान ने उसी होटल में हमारे लिए एक कमरा खाली कर दिया और हम उसमें मुकीम हो गए। आरफ को न जाने क्या हो गया था कि वह बिन फुरकान के साथ ही लगा रहता, और दूसरे दिन उसने मुझे बताया कि उसने बिन फुरकान के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर ली हैं और उसे यह भी पता चल गया कि बिन फुरकान लड़कियां किस तरह हासिल करता है। उसने बताया कि खूबसूरत लड़कियां बिन फुरकान के होटल आती हैं। एक ऐसी जगह है होटल में जहां से हाल पर निगाह रखी जा सकती है। बिन फुरकान वहीं से अपना शिकार का इंतखाब कर लेता है और फिर किसी न किसी तरह लड़की मुंतखब लड़की को अगवा कर लेता है या किसी दूसरे ज़रिए से हासिल कर लेता है और उसे ले जाकर फ़रोख्त कर देता है। तीसरे दिन बिन फुरकान ने हमको तैयार रहने के लिए कहा और फिर रात को 8 बजे के करीब एक कार हमें लेकर चल पड़ी। एक दूर दराज और वीरान इलाके में हम 2 जीपों और एक ट्रक के करीब उतर गए और जीप में बिन फुरकान मौजूद था और उसने आरफ को अपने करीब जगह दी। आरफ उसे बहुत घुल मिल गया था। बहरहाल ये काफ़िला तारीकी में चल पड़ा। नाहमवार और ख़तरनाक रास्ते तय करके सुबह के करीब एक इलाके में पहुंच गए जहां बिन फुरकान के बहुत से साथी उससे जुदा हो गए। ट्रक से 3 लड़कियों को उतारा गया और उसे जीप में ठोंस दिया गया और जिसमें बिन फुरकान मौजूद था। बिन फुरकान के दूसरे साथी दूसरी जीप में थे। अलबत्ता ट्रक वापस हो गया था। अब हम सरहद पार कर रहे थे। बिन फुरकान ने सरगोशी के अंदाज में बताया कि हमारा ये रास्ता मखसूस है, लेकिन फिर भी ख़तरनाक है क्योंकि बाएं तरफ के पहाड़ों पर फ़ौज मौजूद है। और हम दोनों खामोश रहे। तकरीबन 3 मील चलने के बाद जीपें एक सुरंग में दाखिल हो गईं और बिन फुरकान ने सुकून की सांस ली। अब ख़तरा टल गया है और उसने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा। सुरंग से निकलने के बाद जीप की रफ्तार तेज़ हो गई। गो रास्ता अब भी नाहमवार था, लेकिन अब वो लोग बेफिक्र हो गए थे और हमने अभी तक तारीकी में सफ़र किया था, इसलिए उन मजलूम लड़कियों को भी नहीं देख सके थे जिन्हें अगवा करके लाया गया। सफ़र जारी रहा और फिर दूर से किसी बस्ती के आसार नज़र आए। रोशनियां टिमटिमा रही थी, लेकिन चंद ही मिनट के बाद मैंने महसूस किया कि वह बस्ती से कतरा कर गुजर रहे हैं और फिर सफ़ेदा शहर नमूदार होने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही हमें बुलंदो बाला इमारतें नज़र आने लगी, गोया हम किसी बड़े शहर के करीब पहुंच गए थे। ठीक 7 बजे हम शहर में दाखिल हो गए। जीपों की रफ्तार तेज़ थी और बिन फुरकान बहुत मोहतात नज़र आ रहा था। शायद वो रोशनी से कबल यहाँ पहुँच जाना चाहता था, लेकिन देर हो गई थी। लेकिन शहर में दाखिल होकर ज़्यादा सफ़र ना करना पड़ा। एक खूबसूरत इमारत जिस पर
एक होटल का नेमन साइन लगा हुआ था। मैं जीप पे दाखिल हो गई और इमारत के अकब में रुक गई। फ़ौरन ही 10-12 आदमी दौड़ पड़े और उन्होंने सबसे पहले लड़कियों को उतार कर अंदर पहुंचाया, जो स्याह बुरकों में मलबूस थी और जिनकी शक्लें ढकी हुई थीं। फिर बिन फुरकान दूसरे आदमियों के साथ होटल की तरफ बढ़ गया। हम सब के लिए आन की आन में होटल में आला इंतज़ाम कर दिया गया। नाश्ता हमारे कमरे में आ गया और वो नाश्ता करते हुए मैंने आरफ से पूछा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम बिन फुरकान से उतने घुल मिल क्यों गए हो। मेरा जुमला पूरा होते ही आरफ ने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश कर दिया और मेरे कान के करीब मुंह करके बोला, ये बात ना भूलें भाईजान कि ये होटल बिन फुरकान का ही है। ओहो, मैं खामोश हो गया और उसके बाद मैंने आरफ से इस मौजू पर कोई बात नहीं की। वो दिन हमने सुकून से गुजारा और हम उसे सुकून कह सकते थे, लेकिन हमारे दिल तो शाहदा के लिए मुस्तरिब थे और फिर बिन फुरकान जैसे ख़तरनाक आदमी पर भरोसा भी नहीं था। दोपहर को बिन फुरकान का एक आदमी अपने साथ खाना लेकर आया और उसने मुझसे कहा, बिन फुरकान का हुक्म है कि आप लोग भी अपने कमरे से बाहर कदम ना रखें, ये कैद सिर्फ आज के लिए है, शायद कुछ ख़तरनाक हालात पैदा हो गए हैं। ठीक है, हमने कहा और फिर रात गए तक मैं और आरफ गुफ्तगू करते रहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। रात को ठीक 1 बजे जब हम दोनों अपने अपने तौर पर सोने की तैयारी कर रहे थे, हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और हम उछल पड़े। कौन है? मैंने पूछा। दरवाज़ा खोलो, एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये बिन फुरकान ही का आदमी था और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सिर्फ चंद मिनट में तैयार हो जाओ, हम चल रहे हैं। आरफ ने एक लफ्ज़ भी ना कहा और खामोशी से लिबास पहनने लगा। बिन फुरकान के दूसरे आदमी शायद जा चुके थे और नीचे खड़ी हुई गाड़ी में सिर्फ हम दोनों थे या वो शख्स जो हमें बुलाने आया था। चौथा आदमी ड्राइवर था। हम लोग चल पड़े। कार की तमाम रोशनियां बुझी हुई थी। हमें नहीं मालूम था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब उसके बारे में तो सोचना ही फजूल था। 20 मिनट के काफ़ी तेज़ रफ्तारी से सफ़र के बाद कार एक ऐसे इलाके में ठहर गई जहाँ रोशनी नहीं थी। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे को पानी के हल्के से शोर की आवाज़ ज़ख्मी कर रही थी। शायद समुंदर करीब था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। समुंदर की आवाज़ अब वाज़ेह हो गई थी और फिर बाहर साहल नज़र आने लगा। यहाँ तारों की छाँव में बहुत से साए नज़र आ रहे थे। थोड़े फासले पर एक स्टीमर लॉन्च खड़ी थी। एक छोटी सी माहीगीर की कश्ती हम तीनों को लॉन्च तक ले गई। यहाँ हमने बिन फुरकान को देखा जो कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा था और उसने हमें कोई लिफ्ट ना दी और हमें लॉन्च के सामने के हिस्से में पहुँचा दिया गया। यहीं वो तीनों लड़कियाँ भी सहमी हुई बैठी थी जिन्हें अब बुरकों से आज़ाद कर दिया गया था। गो उनकी शक्लें साफ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उनका सहमा सहमा सा अंदाज साफ महसूस किया जा सकता था। लेकिन फ़िलहाल हम उन बेचारियों के लिए कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हम तो खुद भी मजबूर थे। लॉन्च खसूसी किस्म की थी और वो तेज़ रफ्तारी से सफ़र करती रही। फिर रात के किसी हिस्से में बिन फुरकान हमारे पास आया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट और आवाज़ में चहकार थी। क्यों दोस्तों, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? बेआरामी ज़रूर है, लेकिन कल दिन भर हम आराम करेंगे, उसने कहा और हमने अंदाज़ा लगा लिया कि कल सुबह तक हम किसी खुशकी पर पहुंच जाएंगे और वही हुआ। सुबह की आमद थी जब लॉन्च किसी साहल से जा लगी और इस बार किसी भरी पूरी जगह में उतरे थे जहां बिन फुरकान के बहुत से शनासा मौजूद थे। हम सब को हाथों हाथ लिया गया और फिर हम काफ़िले की शक्ल में एक तरफ चल पड़े। तीनों लड़कियां गम से नडाल थी और वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनके चेहरे खौफ और सदमे से सफ़ेद हो गए थे। वीरान आंखों में दहशत के अलावा और कोई तासुर नहीं था। मैंने उनकी तरफ से आंखें फेर ली, मबादा जोश जुनून में कोई ऐसी हरकत ना कर बैठूं जो मुझे शाहदा से दूर कर दे। चुनाचा मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। आरफ मुझसे ज़्यादा गर्म खून रखता था, लेकिन वह अपने चेहरे को लातअल्लक बनाए हुए था। इस बार हमारा क़याम किसी होटल या सराय में नहीं था, बल्कि एक खुश्क जगह खैमे लगाए गए और उन खैमों में से एक में लड़कियों को मुंतकिल कर दिया गया। एक में हम और बाकी दूसरे खैमों में बिन फुरकान और उसके साथी थे। दोपहर तक बिन फुरकान से मुलाकात ना हुई, लेकिन 2 बजे के बाद वो हमारे खैमे में आ गया। इत्तेफाक से दोस्तों, ऐरान के प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हो गई है। पहले मुझे इन लड़कियों को ठिकाने लगाने जाना था, लेकिन मुझे इतला मिली
कि जिस रास्ते से हमें जाना है वो ख़तरनाक हो गया है और जब तक वो साफ़ ना हो जाए हमें वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। चुनाचा मैं इस तरफ आ निकला और ये जगह तुम्हारी मतलूबा जगह है। क्या मतलब? आरफ ने चौंक कर पूछा। इसी इलाके में शेख अल अब्बास रहता है और वो यहाँ के एक बहुत बड़े हिस्से का मालिक है। जनूबी साहल पर उसका ठेका है और उसके आदमी वहाँ माहीगीरी करते हैं और उसी शेख ने तुम्हारी बहन को मुझसे ख़रीदा था। बिन फुरकान की ज़ुबान से ये तफसील सुनकर हम दोनों की बेचैनी की इंतहा न रही। हमारा दिल चाह रहा था कि उड़कर शाहदा के पास पहुँच जाएं और उसे गले से लगा लें। फिर उसके पास कब चलोगे? आरफ ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। थोड़ी देर के बाद चलेंगे। पहले मैं अपने तौर पर उससे गुफ्तगू कर लूँ। अगर वो लड़की को वापस करके उसके बदले में किसी दूसरी लड़की के लिए तैयार हो जाता है तो ठीक है, वरना परसों हम यहाँ से रवाना होंगे और तुम्हारी बहन को अगवा करके लेते चलेंगे। और उस बात पर भी हमने बिन फुरकान से इत्तफाक किया और बड़ी बेचैनी से वक्त गुजारने लगे। आखिर बिन फुरकान हमें साथ लेकर चल पड़ा। जजीरे के रेतले इलाके को अबूर करते हुए हमारे दिल मोहब्बत से धड़क रहे थे। शाहदा से मिलने की आरज़ू शदीद तर होती जा रही थी। कितनी खुश होगी वो हम दोनों को देखकर। और थोड़ी देर के बाद हम पीले रंग की मिट्टी और तख्तों से बने हुए उसको शादा मकान के फाटक पर पहुंच गए, जहां 2 स्यारो आदमी खड़े थे। बिन फुरकान ने उनमें से एक से कहा कि शेख को इतला दो कि बिन फुरकान आया है, और वो शख्स अंदर दौड़ा गया और फिर 1 मिनट के बाद आकर उसने कहा कि शेख ने उन्हें तलब किया है।